Bismillahirrahmanirrahim. Multan Public School and College, O Level 9 Chemistry, lectures by Muhammad Said Tahir. Today's topic is acidity and water, acid strength, and indicators. We will study acidity and water relationship. Acid strength means strong acids and weak acids, and then indicators and different types and their examples, including all the indicators mentioned in the syllabus as well as the extra materials for your better understanding. Learning objectives. To understand the relation between acidity and water, to understand the concept of strong acid and weak acid, to know about indicators and their role in identifying acids and bases. Now we will discuss strong acids and weak acids. Strong and weak acids. Number one, strong acids. Strong acids are the acids which dissociate, mean ionize in the aqueous solution completely. ऐसे एसिड्स या बेसिस जो completely dissociate हो जाते हैं in the solution, in aqueous solution especially, they are called strong acids. For example, HCl, aqueous mean dissolved in water, changes into H positive ion, hydrogen ion and chloride ion. About 100% molecules dissociate into their respective ions. This is not only the one example. H2SO4 changes into H positive ion and sulfate ions. Nitric acid changes into H positive ion and nitrate ions. These are also strong acids. HCl changes to H positive plus Cl negative ion. In the same way, आप नीचे देखेंगे तो NaOH है. NaOH is not acid, it is a base. बेस क्या होता है? Which gives OH negative ion. तो ऐसे बेसिस जो completely ionize हो जाएं into their positive and negative ions. NaOH, sodium hydroxide, aqueous means dissolved in water, changes into sodium ion and hydroxyl ions. तो हम कहते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन में completely का मतलब है 100%, about 100% change into their ions. Then we discuss the weak acids and the weak bases. क्या होते हैं? Weak acids and bases are those compounds or acids and bases which partially dissociate, incompletely dissociate, or partially ionize in solution. Solution mean in aqueous solution. हमारे पास एक एग्जाम्पल है CH3COOH, रिवर्सिबल एरो, CH3COO माइनस, एसीटेट आयन, हम इसको इथेनोएट आयन कहते हैं. इथेनोइक आयन, इथेनोइक एसिड changes into इथेनोएट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन. उसके नीचे NH3 की एग्जांपल है. NH3 इज़ नॉट एन एसिड. NH3 कोई एसिड नहीं है, ये बेस है. और when dissolved in water, it changes into ammonium ion and hydroxyl ion. ये अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन में चेंज हो जाता है. Why ethanoic acid is a weak acid? Because
इट डिसोसिएट पार्शली, पार्शली का मतलब है ये नहीं है कि इसका एक हिस्सा डिसोसिएट होता है, इसका मतलब ये है कि इफ़ देयर आर 100 मॉलिक्यूल्स, about 1 or 2 or 3 molecules change into their respective ions, while other molecules remains as such, वो वैसे के वैसे रह जाते हैं। इन द सेम वे वीक बेस में NH3 है, ये भी चेंज होती है अमोनियम आइन एंड हाइड्रोक्साइड आइन में, हाइड्रोक्सल आइन में, तो ये भी इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होता है। इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होने का मतलब ये है कि अगर 100 आइंस हों तो इनमें से भी 2, 3 या 4 मॉलिक्यूल अपने आइंस में डिसोसिएट होते हैं। तो आपके जहन में स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स और बेसिस, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस और वीक बेसिस सबकी दोनों की बात की है, किसी एक की बात नहीं की है। एसिड्स स्ट्रॉन्ग कौन से हैं, एसिड वीक कौन से हैं, बेस वीक कौन से हैं, बेस स्ट्रॉन्ग कौन से हैं, तो ये हमने इनकी बात की है। वी विल डिस्कस देम फर्दर। नेक्स्ट स्लाइड इज examples of strong acids and strong bases। हमारे पास यहाँ 6 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जो कि सारे के सारे आपके सिलेबस में तो नहीं हैं, लेकिन आपको उनके बारे में अगर पता हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लाइक HClO4, ये एक परक्लोरिक एसिड है जो आपके सिलेबस में नहीं गिवन है, लेकिन ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपके सिलेबस में है, मोस्टली यूज़ होता है, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI हाइड्रो आयोडिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 sulfuric acid, all these acids are strong acids. While if we see the bases, bases are, यहाँ भी 6 एग्जाम्पल्स हैं, लाइक लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, ट्रांशियम हाइड्रोक्साइड्स, बेरियम हाइड्रोक्साइड्स। इनमें जो ऊपर वाले 3 हैं ये आपके सिलेबस में हैं, ये भी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस हैं, और नीचे वाले जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, लेकिन हैं स्ट्रॉन्ग की टाइप्स हैं। तो 6 स्ट्रॉन्ग एसिड्स और 6 स्ट्रॉन्ग बेसिस, यू हैव टू लर्न देम, आपको इनके नाम एंड फार्मूलाज पता होना चाहिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर understanding and your knowledge. Next slide is हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स की। हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स की बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रो आयोडिक एसिड HI, परक्लोरिक एसिड HClO4, HClO3 perchloric acid, and then HClO3 HClO4 chloric acid. In the same way, we have studied perchloric acid is HClO4, while HClO3 is chloric acid. So these are the acids which are strong acids, while weak acids include sulfurous acid H2SO3, not H2SO4, methanoic acid HCOOH, phosphoric acid H3PO4, nitrous acid HNO2, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF।
तो ये भी एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स की। इसमें हमने जस्ट एसिड्स और बेसिस को डिस्कस किया है। नाउ वी कम टुवर्ड्स वीक बेसिस। वीक बेसिस आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करते टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद वाटर। इसकी स्पेशल टिपिकल एग्जांपल्स जो हैं वो हैं अमोनिया प्लस वाटर, चेंजेस इनटू अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस OH नेगेटिव आइन। ये वीक बेस है। और आपके पास अदर एग्जांपल्स भी हैं, अमोनिया NH3, मिथाइल अमाइन CH3NH2, pyridine C5H5N, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं वीक बेसिस की। वीक बेसिस आर द बेसिस which dissociate incompletely in water. The next slide is acid base indicators. Acid base indicators, by definition, acid base indicator is either a weak acid or a weak base that exhibits a color change as the concentration of hydrogen ion or hydroxide ions changes in an aqueous solution. हम कह सकते हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर अक्सर इस्तेमाल होते हैं टाइट्रेशन में, ताकि हम एंड पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकें किसी एसिड बेस रिएक्शन में। ये pH मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और इंटरेस्टिंग कलर चेंज साइंस है डिमॉन्स्ट्रेशंस के अंदर। और आल्सो नोन एज pH इंडिकेटर्स, मींस ऐसी चीज़ें जिनको हम टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये कोई एसिड है या बेस है, वीक एसिड है या वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। तो इसको चेक करने के लिए जो केमिकल्स होते हैं उनको हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं, और ये अपना कलर चेंज दिखाते हैं जब इनको यूज़ किया जाए। देन इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर होता है जिसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। मिक्सचर होता है मल्टीपल इंडिकेटर्स का, ग्रेजुअली चेंजेस कलर ओवर ए वाइड pH रेंज। यानी pH रेंज खासी ज़्यादा तक ये अपना कलर चेंज शो करता है, यानी 0 से लेकर 14 तक ये अपने डिफरेंट कलर्स देता है। इसके लिए आपकी बुक में एक कलर चार्ट बना हुआ है 0 से लेकर 14 तक का। ये जो कलर चेंज उसमें दिखाई गई है, आप उसको देखकर अगर किसी चीज़ की pH चेक करनी हो तो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक ड्रॉप या कोई इस तरह का यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर उस चीज़ में डालकर उसका कलर डेवलप हो जाता है उसमें, तो फिर उसको हम उस चार्ट के साथ मैच कर लेते हैं। जिस नंबर के साथ या कलर के साथ वो मैच हो रहा होता है उसके साथ उसकी pH लिखी होती है। तो इस तरह से ये यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास pH मालूम करने का एक अच्छा तरीका है। Indicators are chosen so mixing a few drops with a solution will produce a color that can be associated with an approximate pH value. Now we come towards the examples. Indicators जैसे थाइमोल ब्लू है, एग्जाम्पल है, एसिड में रेड होता है और बेस में ये येलो होता है। मिथाइल ऑरेंज, ये भी एसिड में रेड कलर का और येलो होता है उसमें बेस के अंदर। देन ब्रोमो क्रिसोल ग्रीन, ये येलो होता है एसिड के अंदर और ब्लू होता है बेस के अंदर। मिथाइल रेड येलो और रेड होता है। ब्रोमोथाइमोल ब्लू येलो होता है एसिड में और ब्लू होता है बेस में। फिर है फिनोल रेड,
ये येलो होता है एसिड में और रेड होता है बेस में। थाइमोल ब्लू ये येलो होता है एसिड में और ब्लू होता है बेस में। फिनोल्फ्थलीन एसिड में कलरलेस होती है और बेस के अंदर ये डीप पिंक कलर की होती है, या हम कहते हैं ये ब्लूइश कलर देती है। मैजेंटा इज़ अनदर वर्ड विच मीन्स ब्लूइश टाइप या डार्क पिंक कलर होता है। सो ये हमारे पास हैं, ये सारे के सारे आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में थाइमोल ब्लू, आपके सिलेबस में देन फिनोल्फ्थलीन है और इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज, ये 2-3 इंडिकेटर्स हैं। और ये पीएच रेंज दिखाते हैं 1.2 से 2.8 तक थाइमोल ब्लू है। आप देख रहे हैं कि फिनोल्फ्थलीन जो है वो 8.2 से 10 तक अपना कलर यानी पीएच रेंज करती है। आगे इसके ना पी के वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये इनकी पी के वैल्यूज़ लिखी हुई हैं कि किस वैल्यू तक, ये आपके सिलेबस में नहीं होते, ये जस्ट ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हायर स्टडीज़, तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। द एसिड एंड बेस कलर्स आर रिलेटिव। Also note some popular indicators display more than one color change as the weak acid or weak base dissociates more than once. Now the homework. The homework assigned to you is write all the examples of acids and bases in your notebook. इसके साथ ही लास्ट में एक आपको बताता चलता हूँ कि what is difference between alkali and base. Alkali is also a base which is water soluble, while base एक जनरल टर्म है। वो सारी की सारी बेसेस पानी में सॉल्युबल नहीं होती हैं, उनमें से कुछ वाटर में इनसॉल्युबल भी होती हैं। तो ऐसी बेसेस जो पानी में सॉल्युबल नहीं होती हैं वो भी वो अल्कली नहीं कहलाती लेकिन बेस कहलाती हैं। लेकिन अल्कलीज सारी वो बेसेस हैं जो वाटर सॉल्युबल होती हैं। इसके साथ ही अल्लाह आपका हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच।